Hello dear student, today we are going to solve question number 3 JEE Advanced 2025 in which it is asking the highest number of unsaturated carbon atoms. As you can see, I have written the response, I have given the answer, I have written the answer over here. And in first case, as we can see that in this particular case, it is asking that there is acid, along with that bromine, red phosphorus and water is also there. As we know, this is bromine and red phosphorus is for HVZ reaction, means Hell-Bollard-Jelinski reaction. I have written the response, I have written the answer, but exactly I will explain each and every answer. I have also marked with the red color. As you can see, these red color indicates the total number of carbon atom present, exactly having double bond. So if we have a double bond, you can see these are all the arrow which I have marked for the carbon-carbon double bond. See, in also option R also you can see I marked with the arrow, the red arrow. You can easily identify the red arrow. These are the carbon which are having unsaturation. Exactly, benzene is common in all of them. Benzene, as you can see, all the PQRS option have benzene, which is common in all the answers. But exactly the side chain containing double bonds will be considered for this total number of or highest number of unsaturated carbon atom. Now I am going to explain all these options, how do they come, and exactly how to count the number of double bonds in all of them. Okay, so we are starting with the options P. Now in answer P, option P, you can see this is, I have marked with P. In P, at first you can see that there is a carboxylic acid, and HVZ reaction is famous for what? Alpha halogenation. Alpha halogenation means the carbon atom which is adjacent to this COH group. COH group adjacent carbon is called, this is called alpha carbon. So alpha carbon is having alpha hydrogen which is being replaced or substituted by a halogen, bromine. And as you can see, this position, bromine is occupying the alpha position of according to with respect to COOH. Now if the bromine is there, this can be easily hydrolyzed by water, of course, and this Br will be replaced by this OH. So exactly in the side chain we are not getting any kind of double bond. The only double bond we have is in benzene. In this benzene only we have the double bonds, and else we don't have any double bond. Now see, in the option Q option, I think you understood, means P option already we have solved. Now this is option Q, and in Q it has given that there is a benzaldehyde and there is a acetaldehyde, and this will undergo this aldol condensation, and aldol condensation is, you understand that this is producing beta hydroxyaldehyde or ketone. So in this case, the very first thing you will do is the aldehyde which is having alpha hydrogen, exactly that will be deprotonated, or you can say the alpha hydrogen we can be removed by this OH minus, because OH minus is going to attack this alpha carbon, and alpha carbon having this alpha hydrogen, and this alpha hydrogen will be released, and there will be enolate ion formation. How we form enolate? See, this carbon ion is having negative charge, and if it is having negative charge, then obviously बात है कि यहाँ पे जो आपके पास है, यहाँ पे आपसे इनोलेट अनायन का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे आप रेजोनेंस करा रहे हो, और रेजोनेंस की वजह से मतलब आपको पता है कि यहाँ तो हर स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है. ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि एल्डोल फॉर्मेशन इज़ अ रिवर्सिबल स्टेप, ऑल एवरी स्टेप इज अ रिवर्सिबल वन. In this case, we are forming the enolate ion. This enolate ion will act as a nucleophile, and this nucleophile is going to attack, this nucleophile is going to attack the फर्स्ट मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो बेंजल्डिहाइड है उसको अटैक करेंगे उसके कार्बोनाइल कार्बन पे. अटैक के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको दिखेगा कि यहाँ पे कार्बन इज कैरिंग दिस O नेगेटिव, अगेन दिस नेगेटिव चार्ज विल टेक अप H+ फ्रॉम वाटर, यानी कि H+ ले लेगा ये वाटर से, और उसके बाद क्या बन जाएगा, इस OH का फॉर्मेशन होगा. ये OH क्या है, अल्फा पोजीशन यहाँ पे और बीटा पोजीशन पे OH आपको दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस CHO. सो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये CHO के बगल में अल्फा कार्बन, एंड यू आर हैविंग बीटा कार्बन ऑल्सो, एंड बीटा कार्बन हैज़ OH. सो दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है. सो एग्जैक्टली अभी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर क्या करेंगे हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन, बिकॉज यू नो कि अभी तक जो हमने बनाया है एल्डोल,
वो क्या है, सिंपल एल्डोल रिएक्शन कहलाता है। लेकिन जब हम उसमें से वाटर निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन ये कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर बात आती है एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, ये जो CHO ग्रुप है, यानी कि दिस आर मार्क्ड विथ दिस हाइलाइटर, ये जो CHO ग्रुप है उसके बगल में अल्फा पोजीशन, उसके बगल का बीटा पोजीशन। यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस और हीट के प्रेजेंस में जब आप काम करोगे तो ये H और OH दोनों को एलिमिनेट करेंगे बाय E1CB मैकेनिज्म। E1CB का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। ओके, अगर इसको आपको समझना होगा तो आप कमेंट में ये बताओ कि E1CB के बारे में पढ़ना है। आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन E1CB। ओके, फॉर नाउ यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा से आपने बना दिया यहाँ पे HOH निकाल दिया और अल्फ़ा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस CHO। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि Q में भी आपके पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और बाकी जो बेंजीन के पास है ये डबल बॉन्ड के हिसाब से आपको चेक करना है कि भाई मैक्सिमम किस में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ज़्यादा है या कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स जो है ज़्यादा है, या मैं हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड्स ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, आई मीन नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है R है। इस R में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है आपके पास बेंजीन के बगल में आपको दिख रहा है कि C ट्रिपल बॉन्ड C बना हुआ है। ये जो C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, इसके पास क्या है, वी हैव अ एसिडिक हाइड्रोजन हेयर। इस एसिडिक हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिख दिया कि ये बिहेव कर रहा है लाइक अ एसिड, और ये बेस की तरह, बेस जो है NaNH2 जो है, दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, और ये बेस के साथ अटैक करेंगे, मतलब रिएक्ट करेंगे, एसिड बेस नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे दिखेगा। और इस एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, NH2 जो है वो अटैक करेगा इस वाले टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोजन को, और इसको क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको बना देगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है इट्स अ सॉल्ट, बट यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल ये काम करेगा आगे चल के। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज इज देयर, और ये नेगेटिव चार्ज ही इंडिकेटर है कि दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल जाएंगे अटैक करेंगे किस पे, इस वाले कार्बन पे जिस पर क्या है, Br प्रेजेंट है। अब अगर Br प्रेजेंट है तो उसके हिसाब से आपको मालूम है कि ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है Br विल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया, एंड इट अटैक्ड दैट कार्बन, अलाइलिक पोजीशन पे ये कार्बन, उसके बगल में डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड। इसको ही अगर आगे बढ़ाऊँ तो क्या हो गया, आई हैव स्विच टू द नेक्स्ट पेज, और इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और आपको दिख रहा है कि Hg2+ इज प्रेजेंट। अब आपको ये समझना है कि Hg2+ जो है दिस इज़ अ लेविस एसिड एज यू कैन सी, और ये लेविस एसिड का काम क्या है, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस वाली एरिया होगा उसके साथ ये कॉम्प्लेक्सेशन बनाएगा, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा, H2O का एडिशन होगा, जो आप समझ सकते हो कि हाइड्रेशन हो रहा है अल्काइन का, ये आपका पढ़ा हुआ है। और उसके हिसाब से क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, विल बी फॉर्मिंग दिस इनॉल फॉर्म। मतलब यहाँ पे देख लो ये इनॉल फॉर्म का काम हो रहा है, यहाँ पे Hg2+ और ऑब्वियस सी बात है हाइड्रेशन के बाद, यानी कि H3O+ लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि H+ और H2SO4, H+ इज कमिंग फ्रॉम H2SO4 एंड वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन करने से क्या होगा, डबल बॉन्ड पे एक तरफ आपके पास क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है H होगा, और एक तरफ क्या लग रहा है आपको, H, और एक तरफ क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ये इनॉल फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड जो है एज इट इज़ अपनी जगह पर आपको दिखेगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, अब यहाँ पे क्या है, ये पोर्शन जो है इनॉल फॉर्म की तरह दिख रहा है। अब ये टॉटोमराइज करके क्या बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कीटो फॉर्म, जैसे C डबल बॉन्ड O। तो टॉटोमराइज करने के बाद भी हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में एक ही डबल बॉन्ड साइड चेन में दिख रहा है, बाकी बेंजीन तो सबके बीच कॉमन ही है। एंड द लास्ट ऑप्शन विच इज़ S, इसको फटाफट देख लीजिए। इसमें बेंजीन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे ओजोनलिसिस करने की बात चल रही है। ओजोनलिसिस करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, वी विल ब्रेक दिस डबल बॉन्ड, और शॉर्टकट में हम लोग बताते हैं कि डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और ईच कार्बन विल गेट अ ऑक्सीजन। जैसे हमने यहाँ पे ये ऑक्सीजन दे दिया और ये ऑक्सीजन दे दिया, जो डबल बॉन्डेड कार्बन को तोड़ने के बाद मिला है। अब यहाँ पे एक तरफ कीटोन, दूसरी तरफ एल्डिहाइड, ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, इस वजह से क्या होगा, एल्डिहाइड्स विल नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन अब एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया कि यहाँ पे 2 मोल फर्दर जो है RMGX को के साथ ट्रीट करना है।
RMGX जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा किसके साथ, कीटोन और एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। और क्या होगा, CH3 माइनस विल अटैक द कार्बोनाइल कार्बन हियर, एक CH3 यहाँ दिख रहा होगा आपको और एक CH3 यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये दो जगह CH3 बना है और साथ में जो नॉर्मली O माइनस MgBr प्लस ये सब बनता है। यानी यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फर्दर आपको दिखेगा कि आप H प्लस डालोगे यानी कि H प्लस डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ये दो जगह अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, एक कीटोन से और एक एल्डिहाइड से। ये वाला पोर्शन कीटोन था और ये वाला पोर्शन क्या है, ऑब्वियस बात है एल्डिहाइड था। अब क्या करना है, क्योंकि अब H प्लस दिया था और इसके बाद H प्लस और हीट, हमें ये समझना है कि पहला H प्लस जो है वो क्या होगा, ऑब्वियस बात है अल्कोहल बनाएगा, लेकिन अगला बार जो अब हम हीट करेंगे H प्लस और डेल्टा का साइन यूज़ करके, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस जो है और हीट के प्रेजेंस में देयर विल बी एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों जगहों पर, और डबल बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पे दिखेगा कि ये दोनों क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है सेट-ज़ेप प्रोडक्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है दिस इज़ अ सेट-ज़ेप प्रोडक्ट और यहाँ कोई और ऑप्शन ही नहीं है, सो सिंगल प्रोडक्ट ऑफ दिस डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। तो अब इन दोनों में क्या हो गया, आई थिंक वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन कार्बन। सो बेसिकली एस में आपको दिखेगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपके पास है एज कम्पेयर टू ऑल अदर ऑप्शन। तो बाकी ऑप्शन से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आपको यहीं पे दिख रहा है। सो बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन हैविंग अनसैचुरेशन विल बी ऑप्शन एस। चलिए फाइनली एक बार और देख लेते हैं इस सवाल को, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि बेंजीन कॉमन है सभी में, ठीक है, सभी के पास क्या है, आंसर में बेंजीन है, लेकिन बेंजीन के अलावा आपको क्या देखना है, यू हैव टू सी कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स किसके पास ज़्यादा है, वो भी कार्बन और कार्बन के बीच में। तो फर्स्ट ऑप्शन पी में आपको दिख रहा है कि साइड चेन में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको दिख रहा है, हमने जो रेड से मार्क किया है इसमें एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि एक ही डबल बॉन्ड है, लेकिन इस जगह आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे एडिशनली आपको इन सब जगहों पे दिख रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम्स दिखाई दे रहे हैं। सो ऑप्शन एस यानी कि ऑप्शन डी जो है उसको आपको आंसर टिक करना चाहिए, जिसमें क्या है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड।